Tonight's topic, voice. There are two types of voice, active voice and passive voice. Okay? What is the difference between active voice and passive voice? जब काम के करने का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो हम काम कर रहे हैं, जो वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, राम किल्ड रावण. फॉर एग्जाम्पल, राम किल्ड रावण. रावण वॉज किल्ड बाई रावण. यानी जहां पर प्रायोरिटी किसको मिलती है? ऑब्जेक्ट को. उसको क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस. ठीक है. काम के करने वाला तो वही रहेगा, काम के करने वाला वही रहेगा, यानी ये काम उसके द्वारा किया गया. ठीक है. या ये काम उसके द्वारा किया जाता है. दैट डिपेंड्स ऑन द टेंस. क्लियर? नाउ व्हाट आई एम सेइंग अबाउट द रूल्स. क्लियर? एक्टिव वॉइस के अंदर मैं पहले टेंसेस को लेके चलती हूँ बच्चे. V1 के कौन से टेंस में आता है? V1 प्रेजेंट टेंस के, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है V1. ठीक है. इसमें चेंज हो जाएगा ये पैसिव वॉइस में. इज, एम, आर प्लस V3. क्लियर? सेकेंड तो टेंस आपका V2 किस में आता है? ये सिंपल, ये आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस. Okay, it will be changed into was were plus will. Whether any type of tense is there, there will be V3 in passive voice. Okay? Then has, have plus V3. Which tense? Present perfect. That will be changed into has and have. Depends on the number of the subject. If the subject is plural, then we will use have. If the subject is singular, then we will use has. Plus be plus V3. Is that clear? Yes. Next. Had. Simple present, simple past, present perfect, Yes, ma'am. past perfect. Had plus V3, past perfect. Then had plus V3. Next, four tenses have been done here. Simple present, simple past, present perfect, past perfect. Now we will come to continuous tense. Okay? Is, am, are plus V1 plus ing or V4. Okay? That is present continuous tense. Is, am, are plus being. I have told you earlier that if the tense is in continuous, then we will use V1 plus ing, and there will be no change in tense in passive voice. Okay? Then we will take it this ing with be. Being plus V3. Okay? Next. Only 8 parts of tenses will be changed into passive voice. We have 3 tenses: present, past and future. Clear? Yes, ma'am. समझ आया? Yes. But each tense having 4 parts: simple present, simple past, present continuous, past continuous, present perfect, past perfect, future perfect. Like this. But only 8 parts have been changed into passive voice. Which 8 parts? The last 3 parts. Last 3 parts which one? Present,
present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous. These three tenses and one more, these four parts of the tenses are never to be changed into passive voice. Is that clear? Yes. समझ आया? तो हम कितने तक 5 कर चुके हैं ना? Yes. अब आइए was were प्लस V1 प्लस ing, इसमें चेंज हो जाएगा ये was were प्लस being प्लस verb की थर्ड फॉर्म. Is that clear? Yes. Now 7. अब आते हैं फ्यूचर टेंस के ऊपर. ठीक है? Will, shall प्लस V1. It will be changed into will be और shall be plus third form of the verb. Only one part has been left now. Future perfect tense. Will or shall have plus third form. It will be changed into will, shall, have, be plus third form. तो आपने यहाँ पर क्या नोट किया बच्चे? क्या नोट किया आपने यहाँ पर? There will be no change in tenses. Yes. While we are changing these sentences into passive voice. ठीक है? टेंसेस में कोई चेंज नहीं, क्योंकि टेंस मैंने उसने बताया था जब आपको टेंस करवाया था कि टेंस हमारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर. ठीक है? जैसे यहाँ पर V1 है तो यहाँ पर क्या आ गया? Is and are. दोनों प्रेजेंट टेंस में लगते हैं ना. V2 है तो क्या आ गया? Was. Is that clear? Have, has प्लस थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म. कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. सेम रहा ना? Yes, टेंस चेंज नहीं हुआ ना. Has, have प्लस been प्लस थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट had. यहाँ भी had है, कोई चेंज नहीं है. यहाँ पर is and are है तो यहाँ पर भी is and are है. यहाँ पर was were है तो यहाँ पर भी was were है. will shall है तो यहाँ पर भी will shall है. यहाँ पर भी will shall have है तो will shall have है. ना कि had नहीं बनाया मैंने यहाँ पर. Yes. Is that clear? यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो देयर इज नो चेंज इन टेंसेस. क्लियर? दूसरा क्लू क्या निकलता है? इन पैसिव वॉइस दे विल बी यूज्ड फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. देखिए हर टेंस के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है यहाँ पर, है ना? क्लियर? जो ऑलरेडी परफेक्ट टेंस है, ऑलरेडी जो परफेक्ट टेंस है वहां पर क्या लगा है मैंने? बी. ठीक है? जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है वहां पर क्या लगेगा? बी. दो ही तो टेंस बचे हमारे पास कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस. प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. was were प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्लियर हो गया? अब हम आते हैं मॉडल्स पर. ये तो थे हमारे टेंसेस. अब मॉडल्स कैसे चेंज होंगे? मॉडल्स हमारे कौन कौन से हैं? जैसे कैन, कुड, मस्ट, ought to, एटसेट्रा लिख देती हूँ मैं. ठीक है? ये किसमें चेंज हो जाएंगे? इनके बाद क्या लग जाएगा? कैन बी, कुड बी, मस्ट बी, ought to be प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. एटसेट्रा मतलब बहुत सारे जो भी जितने भी मॉडल्स हैं उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. यानी मॉडल और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा. क्या लगेगा? बी लग जाएगा. ठीक है? समझ आया? हाँ? कैन बी डन, कुड बी डन, मस्ट बी डन, ought to be done, should be done. ठीक है? have to be done, might be done, whatever. बीच में बी लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म. वो मैं आपको तरीका बताऊं कि चेंज कैसे करना है. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. हमने क्या क्या क्लू निकाला इन सब से? देयर विल बी नो चेंज इन टेंसेस व्हाइल वी चेंज द सेंटेंस इनटू passive voice. Is that clear? Yes. Second, in passive voice, in each sentence we will put third form of the verb. Is that clear? And next,
perfect, then we will use been. If the sentence is continuous, then we will use been. ठीक है, समझ आ गया? Yes. And each type of sentence we will use third form of the verb in passive voice. Clear? बहुत easy है ना? Yes, ma'am. Okay, चलिए अब हम आगे एक्सरसाइज करते हैं. जब इसको रहने दो. The verbs are there. There can't be changed into passive voice because these are not action verbs. While we were doing the tenses, I made you learn some verbs. Learn, know, remember. बताया था ना? Yes, तो वहां पर ing नहीं आता. बताया था ना मैं, जहां पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस करवा था और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करवा था, क्या डिफर करते हैं. यानी जो एक एब्स्ट्रैक्ट होती है, इनको हम छू नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर वो जो वर्ब हैं उनमें पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है. जैसे ही वॉक्ड ऑल द वे होम, तो हम ऐसे नहीं करते ऑल द वे होम वाज वॉक्ड बाय हिम. कैसे हो सकता है? समझ आया? यानी जहां पर हम बोलेंगे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? सकर्मक, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? सकर्मक. और इंट्रांजिटिव अकर्मक. अकर्मक का मतलब क्या है? अकर्म के. ठीक है, अक्रम. अक्रम का मतलब बिना कर्म के. बिना कर्म के मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के. ठीक है, यानी जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. द वर्ब दैट doesn't take with it object, that is called intransitive verb. And the verb, if the verb is in intransitive form, then there will not be changed the sentence into passive voice. Is that clear? Yes. For example, he didn't find a cigarette shop. He didn't find a cigarette shop. उसको सिगरेट शॉप नहीं मिली, तो हम ये नहीं बना सकते कि ये सिगरेट शॉप was not found by him. ठीक है, can you convert them into passive voice? को पहले दे रखा है इसमें. नेक्स्ट है Albert picked up a pen. हाँ, ये बना सकते हैं हम, ये हम बना सकते हैं. A pen was picked by Albert. He put a large cross at the bottom of the paper. A large cross was put by him at the bottom of the paper. क्योंकि अगर देखिए हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख देते हैं, Albert picked up what? A pen. What, जहाँ जो वर्ब एक क्वेश्चन अराइज करती है, what, how, जहाँ पर how आ जाएगा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन what आ गया तो वहां पर पैसिव वॉइस चेंज हो जाएगा. ठीक है, what he picked, ठीक है. He put a large cross. What did he put? A large. ठीक है, what did he put? A large cross. Albert Foreman laughed loudly. And no change. No change because laughed. How? कि यहाँ पर manner है, Yes. not what, not with. यानी जो कर्म है वो किसके साथ किया गया, जो क्रिया है वो किसके साथ की गई, वो नहीं है, वो कैसे हुई. He laughed loudly. मैनर है यहाँ पर, तो जहाँ पर मैनर है वहां पर नो चेंज. सॉरी, दिस सेंटेंस he didn't find a cigarette shop, तो ये चेंज होएगा. He didn't find what? He didn't find what? He didn't find. क्या नहीं मिला उसको? Cigarette shop. The cigarette shop was not found by him. The manager looked surprised. No change. Why? Manner. Looked. How he looked? Surprised. How he looked surprised. That is a manner. Manner है ना ये? Yes. Word तो नहीं है ना कि क्या देखा. अगर क्या देखा तब तो आप चेंज कर सकते थे. Otherwise manner है that you can't be changed. I opened a bank account. I opened. A bank. क्या है?
बैंक अकाउंट, क्या बैंक अकाउंट, Ma'am, तो चेंज हो जाएगा a bank account was opened by me. He laughed loudly, नहीं चेंज हुआ, No change. ठीक है, नो चेंज। तो समझ आ गया आपको Yes. ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? Yes. ओके, चलिए अब तुम्हारे सिलेबस में आता कैसे है वो मैं फिर से एक बार बता रही हूँ। बॉयल 200 grams of pasta, strain out extra water and put the pasta aside. Cut vegetables like onion, bell pepper, cauliflower, etc. into small pieces and fry in a pan. Add salt and spices. Add the boiled pasta to this mixture. Garnish it with sauces of your choice. Serve it hot. These are the recipe and instructions to prepare this pasta. Okay. Now you will convert all these instructions, all these manners into passive voice. Okay. कैसे आप चेंज करोगे? 200 grams of pasta is boiled. That is general. And in general, you will use simple present tense. Not that is past. कि जब भी आप पास्ता बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे। Is that clear? 200 grams of pasta is boiled. क्योंकि आपको बॉयल करेंगे ना, बॉयल 200 grams of pasta. नेक्स्ट स्ट्रेन आउट एक्स्ट्रा, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करनी है? वर्ब। इसके सेंटेंस के अंदर, इस इंस्ट्रक्शन के अंदर वर्ब क्या है, क्योंकि ये सारे के सारे सेंटेंस किस में दे रखे हैं? इंपेरेटिव फॉर्म में। एंड यू नो दैट इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर टू बी स्टार्टेड इन विद बी वर्ब, पता है ना? जैसे बॉयल है, स्ट्रेन है, कट है, एड, गार्निश, सर्व, दीज आर ऑल वर्ब्स, ठीक है? और सारे सारे सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वर्ब्स के साथ। क्लियर? नेक्स्ट क्या आएगा? एक्स्ट्रा वाटर इज स्ट्रेन्ड आउट एंड द पास्ता इज क्या? असाइड। क्योंकि क्या लिखा ना, पुट द पास्ता असाइड, यहाँ पर केप्ट की बजाय आप पुट भी कर सकते हो, इज पुट असाइड। पुट ही आएगा क्योंकि इसने पुट वर्ब दे रखी है तो पुट ही आएगा। अगर यहाँ पर कीप वर्ब दे रखी होती तो आप कैप रखते। मैम हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट में चेंज करें। बिल्कुल। क्लियर? नेक्स्ट है वेजिटेबल्स लाइक अनियन, बेल पेपर एंड कॉलीफ्लावर्स एक्सेट्रा। ये ज्यादा हो गए ना, 3-4 वेजिटेबल्स होगी। आर कट, देखो ना, कट वेजिटेबल्स लाइक अनियन। नेक्स्ट है इनटू स्मॉल पीसेस एंड आर फ्राइड। नेक्स्ट देखो ध्यान रखा है इनटू स्मॉल पीसेस एंड फ्राइड इन द पैन, एंड आर फ्राइड इन ए पैन। सॉल्ट एंड स्पाइसेस आर एडेड, एड सॉल्ट एंड स्पाइसेस, तो इसको चेंज कर दिया, ठीक है? सॉल्ट एंड स्पाइसेस आर एडेड। नाउ द बॉइल्ड पास्ता इज एडेड टू दिस मिक्सचर। देखा ना, एड द बॉइल्ड पास्ता, द बॉइल्ड पास्ता इज एडेड टू द मिक्सचर। गार्निश, गार्निश का मतलब क्या होता है? सजाना। गार्निश का मतलब क्या होता है? सजाना। गार्निश इट विद सॉसेस ऑफ योर चॉइस। क्या दे रखते हैं यहाँ पर? स्पाइसेस आर एडेड, नॉट बॉइल्ड पास्ता इज एडेड टू दिस मिक्सचर। इट इज गार्निश्ड, इट इज गार्निश्ड, ठीक है? इट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इट किसके लिए आया है? पास्ता के लिए। इट इज गार्निश्ड विद सॉसेस ऑफ योर चॉइस। इट इज सर्व्ड हॉट, सर्व इट हॉट, सर्व इट हॉट। तो इट को पहले ले आइए, ठीक है? इट इज सर्व्ड हॉट। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. मोस्टली जो है ना इस टाइप से ही आता है, आपका रेसिपी आती है या कोई इंस्ट्रक्शन आती है, इस वजह से आपको बता दिया जाए कि सामान को कैसे पैक करना है। ये बताओ कि पैकिंग कैसे होती है, ठीक है? क्रॉकरी की पैकिंग कैसे होती है, ठीक है? तो वहां पर आपको क्या दिया जाएगा? इंस्ट्रक्शंस। तो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? पैसिव वॉइस। ऐसे सेंटेंस दिए होंगे जहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स पुट करने हैं वहां पर। क्लियर? यस मैम। समझ आया? यस मैम। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? नो मैम।